Hello, friends. Today, in the next episode, that's the second episode of passive sense, active passive. In my earlier episode, the first one, I brought it to you the passive formation of present indefinite tense, where I told you that there is a change in the pronoun. That means I becomes we, and vice versa, we becomes I. We becomes us, and vice versa, us becomes you. You remains you, it remains it. So you and it, these are the two pronouns which remain same. That means you can come in the beginning and you can also come there at the end. It also, it comes in the beginning, it also comes in the end. So there are two pronouns, that is you and it, which remain same. And then he becomes him becomes he. She becomes her, and her becomes she. They becomes them, and them becomes they. These are the change in pronouns you have got. And then you got my, our, your, its, his, her, and their. Now these are possessive pronouns also, and these are possessive adjectives also. Now when you call possessive adjectives, I want to go to their home, THEIR, and their home, this is where you have possessive adjective. So you have this, with that you will be that something will be attached with that. So as it is, just come to them. So present indefinite tense, that means subject V1, S or ES is optional, and then an object. And when you want to change it to passive tense, object comes in the beginning. Object is MR V3 by subject, and that's how it is. So a full stop remains full stop. A question mark will always remain a question mark as far as active passive is concerned. Now this is something which I brought it to you in my last episode. So those of you who are weak in verb forms, that is V1, V2 and V3. Now you need to update yourself in those V1, V2 and V3. Now in my second episode today, I'll bring present continuous tense and its passive, present perfect tense and its passive. So please be very attentive. Those of you listening anywhere, make sure that you have a pen and pencil. जो कोई भी मुझे जहाँ भी सुन रहा है, देखो आपके पास पेन पेंसिल जरूर होना चाहिए और लिखते रहिए. मैं बोल भी रहा हूँ और आई एम श्योर कि जो मैं भाषा बोल रहा हूँ उसकी आपको एम्पल क्लैरिटी हो जाएगी. इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में यूज़ करूँगा. So I'm sure you are all ready. So here we go. Present continuous tense and its passive sense. I've written it here. Passive formation, that is present continuous tense. Now many of you children, बहुत सारे बच्चे हैं जो present continuous tense, especially continuous tense, continuous की spelling नहीं आती. CONTINUS, ये U लगाना भूल जाते हैं. CONTINUOUS, make sure. Okay. ये present continuous को हम present progressive भी बोल देते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है. PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव. जो काम अभी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम अभी चल रहा है. इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे. अब देखिए क्या है फॉर्मेशन इसकी. सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर लिखते हैं. डूअर, दैट मीन्स काम करने वाला. डूअर प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज एम आर V1 ING ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव फॉर्मेशन में है. दिस इज इन एक्टिव फॉर्मेशन. This is in active formation. I am teaching you. I am teaching you. This is present continuous tense. I. This is subject. This is helping verb. इसको लिखते हैं HB. इसको auxiliary भी बोल देते हैं. HB, that means auxiliary, helping verb. This is V1 plus ING. Teach,
टी से टीचिंग बन गया, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव फॉर्मेशन, इज एम आर वी वन आई एन जी यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्मेशन में है. इसको पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे. ओके, ये यू है, यू ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लाएंगे. ऑफ कोर्स इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 plus by plus subject. This is passive. This is passive formation of present continuous tense. Object is a being V3. अब B को हम लिखते हैं is a जिसको हम V1 बोल दें. अगर आप इसको मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, प्राइमरली चिल्ड्रन, बेसिकली एट फर्स्ट इंस्टेंस, पहली मर्तबा इसको हम इस एम आर को क्या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी बोल देते हैं. लेकिन इज एम आर हो, वाज वर हो, हैज हैव हो, हैड हो, डू डज डिड हो, ये हेल्पिंग वर्ब से बदलकर मेन वर्ब का भी काम करते हैं. आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ये इज एम आर लग गया इसमें, यहाँ पे मेन वर्ब का काम हो रहा है. यू आर ऑल प्रेजेंट हियर, आर. यू वर देयर इन दिल्ली यस्टरडे, वर लग गया. यू विल बी देयर इन दिल्ली टुमारो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लग गया. अब दोज ऑफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, जो बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सिर्फ इसको पैसिव सेंस के फॉर्मेशन पे मत लेना. ये तो एक पार्ट है ग्रामर का, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में उसका एक हिस्सा है, जिसमें नरेशन भी आएगा, डिग्रीज भी आएंगे. लेकिन जो बच्चे या जो बुजुर्ग जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो बोलना सीखना चाहते हैं और करेक्ट इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, that should be grammatically correct, phonetically correct, everything that should be correct about. If you really want to dominate English, ये फॉर्मेशन आनी बहुत ज़रूरी है. और इज़ेमर कहाँ लगता है, वाजवर कहाँ लगेगा, शेलविल कहाँ लगेगा, विल टॉक अबाउट दैट. सो इसको सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव सेंस ये तो सीखना ही है, लेकिन इसके अलावा अंग्रेजी भाषा सीखनी है. जो सीखना चाहते हैं, जो लर्नर्स हैं, आप इसकी एक एक चीज़ सीखिए. तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से. बी फर्स्ट फॉर्म, दैट इज एम आर. बी सेकेंड फॉर्म, वाज वर. और बी की थर्ड फॉर्म होती है बी. दिस इज बी. सो V1, V2, V3. अब बात करें इज एम आर की. इज एम आर की, ओके. Is means he, means she, means it, or means one name. Means M, that means I. And R, we, you, they, plurals. तो अगर अंग्रेजी को आगे बढ़ाना है तो ये is एम आर को ग्रिप कर लीजिए. Is, he, she, it, just one name. Miss singulars, I के साथ M आता है, और we, you, they are के साथ हम plural के साथ R लगाते हैं. So what I'm talking about is passive sense of present continuous tense. अब यही बात करें ना. I wrote one sentence here. I'm teaching you. I'm teaching you. This is present continuous tense. I'm teaching you at present, at this moment, nowadays, these days, still. ये सिर्फ कुछ निशानियां हैं, कुछ क्लूज हैं जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. जब मैंने आपको टेंसेस करवाए थे, जिस एपिसोड में मैंने टेंसेस करवाए हैं, तो उसमें आप देखिए ये सब मैंने बताया हुआ है. आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ निशानियां हैं, कुछ क्लूज हैं, कुछ हिंट्स होते हैं. तो एट द मोमेंट, नाउ, नाउडेज, दीज डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, ये सब चीज़ें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती हैं. अब इसमें लिखा हुआ आई एम टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट क्या है, यू. ओके, अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे हम सबसे पहले यू. यू इज ए प्रोनाउन. यू एक्टिव में भी यू रहता है और पैसिव में भी यू रहता है, तो यू यू रह जाएगा. दिस इज यू. अब इज एम आर, इसमें से इज एम आर है ना. ओके,
अब पैसिव में कहेंगे ये ऑब्जेक्ट तो हम लेके आ गए यू यहाँ पे, इज एम आर, इज एम आर में से हम एक चीज लेंगे, इज एम आर, यू के साथ आर आता है, हम आर लगा देंगे, यू आर, आई एम टीचिंग यू, यू आ गया, आर अपने ले लिया। अब अपनी तरफ से हम क्या लेंगे, बीइंग, यू आर बीइंग, टीचिंग, टीच प्लस आईएनजी, दैट इज टीचिंग, ओके, टीचिंग। अब टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच, टॉट, टॉट, तो थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, यू आर बीइंग टॉट बाय, ऑफ कोर्स आप अपनी तरफ से लगाएंगे बाय ऑफ ए सब्जेक्ट, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट जो है ये आखिरी में जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आई को हम किस में तब्दील करेंगे, मी में, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, फुल स्टॉप लगाएंगे। So I am teaching you, you are being taught by me. This is the simplest way of changing an active into passive present continuous tense. मैं आपको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हम चेंज करेंगे। Are you eating apples? Are you eating apples? Of course, present continuous tense है. Are you eating apples? Question mark is there. Active passive में कोई भी tense हो, indefinite हो, continuous हो, perfect हो, past indefinite हो, past continuous, past perfect, future indefinite या future continuous, future perfect. 8 हैं. तीनों perfect continuous tenses, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous और future continuous 4. आउट ऑफ 12 4 की पैसिव सेंस तो होती ही नहीं है, तो बच गए कितने, 3 प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, 3 पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, और 2 फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे जिसमें सेंटेंस V1 से शुरू होगा, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट ये सब चीज़ें होंगी। वेल उसका भी हम करेंगे, यूर ऑर्डर्ड, यूर एडवाइज्ड, बट एज ऑफ टेंसेज की बात करें तो 8 ही हैं, और उसमें से ये दूसरा मैं करवा रहा हूँ जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। आर यू ईटिंग एप्पल्स, एक भी हो सकता था, आर यू ईटिंग एन एप्पल, अगर एक है तो मैंने एन लगा दिया, प्लूरल्स के लिए तो एन नहीं लगा सकता ना, ए भी नहीं लगा सकता। सो आर यू ईटिंग एप्पल्स, मैंने कहा ना क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो पहले लगा दो, कभी आप भूल जाएं, भूलना नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स, ये ऑब्जेक्ट है। अगर पैसिव सेंस क्वेश्चन मार्क का है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो इज एम आर मैंने लिखा है इसको यहां लाना पड़ेगा। मिस जो आपका जो ऑब्जेक्ट था उससे पहले आपको इज एम आर लाना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग दैट इज एम आर बिफोर द ऑब्जेक्ट विच यू ब्रॉट फ्रॉम द एंड। जो आखिरी में ऑब्जेक्ट था जिसको आप सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उससे पहले इज एम आर लगाना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, एप्पल्स, एप्पल्स के साथ इज एम आर, फाइन, आर एप्पल्स being eaten by you remains you, question mark. So are apples being eaten by you, ये question mark रह गया, तो this is। और अगर एक होता an apple is लग जाएगा, is an apple being eaten by you, is an apple being eaten by you, तो is लगाइए, am लगाइए, are लगाइए, कुछ भी, लेकिन वो शुरू में आएगा अगर क्वेश्चन मार्क है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग मी, ही इज टीचिंग मी, अब मी को आपने कन्वर्ट करना है, एम बन जाएगा। एम आई बीइंग टॉट बाय हिम, एम आई बीइंग टॉट बाय हिम। डिपेंड करता है कि आप जो आखिरी में जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाके सब्जेक्ट में
एम लग रहा है, ही लग रहा है, शी लग रहा है, डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको इजमा लगाना पड़ेगा. दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आई एम श्योर you must have had a good taste of this. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये. अब प्रेजेंट परफेक्ट लेके आ रहा हूँ आपके आगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चिल्ड्रन, जो कि प्रेजेंट टेंस में आखिरी है. एक ही बात है, आप एक बार सिर्फ कोई किसी भी टेंस का एक्टिव पैसिव बनाना सीख गए, बाकी सिर्फ तो किसी में बीइंग लग रहा है, किसी में बीन लग रहा है. ओके, यही तो है. पास्ट में वहाँ भी वाज वो लगेगा, वाज वो बीइंग लगेगा या फिर हैड लगेगा. तो अब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में कैसे करना है. इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है. बस ओनली थिंग इज चिल्ड्रन, जब अब मैं ये एक्सरसाइज जब मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स हैं, ग्रामर की हर बुक में आप ये मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस करिए. और मैं आपको अपना एड्रेस बताऊंगा. इट इज़ ब्रिटिश स्कूल ऑफ इंग्लिश, 624/24 DLF कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा. इट्स इंडिया. 9992100152 9700004879. Now these are the telephone numbers also. You can just talk to me on these numbers. You can contact me, you can send your views. Of course, that's very important. I want to know how many of you are really getting, how many of you are really enjoying. Keep enjoying, children. You must have fun when you study. That is fine. So present perfect tense. Present perfect. This is subject, this is has, this is have, this is V3, this is object. Has a V3. अब एक और आसान चीज़ है तीनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो. V3 ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी मिलेगा, तो आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इसमें जो दे रखा है उसी को लगाना. पैसिव सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा. हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. नाउ चिल्ड्रन, हैज, हैव, बीन, V3 बाय सब्जेक्ट. ऑलरेडी V3 है यहाँ, ये V3 यहीं में आ जाएगा. एक चक्कर है, सिर्फ बीन लगाना है. तीनों परफेक्ट में हैज, हैव, बीन, हैड बीन, विल हैव बीन. ये सिर्फ बीन तो तीनों में आएगा ना, V3 दे ही रखा है. बहुत आसान है, एब्सोल्युटली इजी. तो हैज, हैव. Children, here has have is primarily an auxiliary. यहाँ पे has have क्योंकि ये इस being को, इस थर्ड फॉर्म को हेल्प करने के लिए आ रहा है, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, उसके लिए has have चाहिए. तो ये जो has have है, ये यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है. बट has have, had और had, ये V1, V2, V3 भी हैं. I have a chalk in my hand. I had a chalk yesterday. I shall have a chalk in my hand tomorrow. So has, have, had. I have had my breakfast recently. I had had breakfast when you came. I shall have had breakfast when you come. So future perfect, past perfect, present perfect, ये सब has, have लगता है इसमें V1. So यहाँ पे been है. क्या है? Been है. Have your parents helped her. Have your parents helped her? This is a question mark, children. This is a question mark. Can you see that? Fine. I told you, question mark remains a question mark. हटाना नहीं है. अब की बार बीन लगेगा. Her. Have your parents. Parents plural था, have लगा. अब की बार her changes into she. शुरू में her नहीं आएगा, she आएगा. आंसर क्या आएगा? Has in the beginning. Has she then been? Has she been helped by as it is by your parents? Question mark.
So has she been helped by your parents? It's a question mark again. So question mark भूलना नहीं है. यहाँ पे have था क्योंकि parents था. यहाँ पे हर आप शुरू में she लेके आ रहे हो तो has लगो. तो has को have में convert किया जाता है according to the requirement. Have को has में, has को have में. ये तो convert हो सकता है. तो present perfect में आपको has मिलेगा और been मिलेगा और V3. V3 ऑलरेडी आएगा तो उसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी. तो इंडेफिनिट मैंने पहले एपिसोड में लाया. आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, जिसमें ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस V3 बाय एंड सब्जेक्ट. अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन V3. अब इसको एक और तरीका है आपको देखने का कि आपको आ गया या नहीं आ गया. एक ही सेंटेंस बच्चों, एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट डेफिनेट में लिखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखिए और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए. मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ. My mother teaches me English. Children, now see one more thing. My mother teaches me English. दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक इंग्लिश है. आप दोनों ऑब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं. अगर आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ रहे हैं तो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा. मैं आपको करके दिखाता हूँ. मैं इसको लेके आ रहा हूँ. इंग्लिश इज taught to, this is me, by my parents. English is taught to me by my parents. Fine. मैं इसको लेके आता हूँ. दूसरा ऑब्जेक्ट है I. Me becomes I. I के साथ am लगेगा. I am taught English by my पेरेंट्स. दो तरीके हैं इनको चेंज करने के. ये इंडेफिनिट टेंस है टीचर्स. फाइन. अब मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेके आ रहा हूँ. वन सेकेंड. माय मदर इज टीचिंग मी इंग्लिश. ओके. नाउ इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. Again, you can bring this. English is being taught to me. अब क्या होगा? इसमें being लगेगा. English is being taught to me by my parents. Being children, यहाँ पे being नहीं था. और I am being taught English by my parents. So दोनों तरीके हैं. Object सिर्फ यहाँ पे indefinite था, यहाँ पे continuous है. So what? English is being taught to me by my parents, or I am being taught English by my parents. So it is indefinite, it is continuous. Now the last one is children present perfect tense. Present perfect में जो भी मैंने आपको बताया, I am writing it here. My parents have taught me English. My parents have taught me English. Again दो तरीके हैं. English has been taught to me. English has been taught to me by my parents, or I have been taught English by my parents. Again two. So how to see whether you have known, whether you have understood or not. एक ही सेंटेंस को अपने आप तरीके से बदलिए. मैं इंडेफिनिट बोलता हूँ तो आप कॉन्टिन्यूस में चेंज करिए, कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट में चेंज करिए, और जब मैं पास्ट टेंस लेके आऊँगा तो पास्ट में बदला जा सकता है. तो जस्ट ट्राई टू हैव, एक इंडेफिनिट है उसको कॉन्टिन्यूस में बदलिए, परफेक्ट बदलिए, परफेक्ट को कॉन्टिन्यूस में, इंडेफिनिट में. सो दिस इज हाउ आई एम श्योर यू विल
have a good time. I'm sure I tried to bring the best. जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने उसको लाया, और उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आएगा. Thank you for being with me, and one request, of course, thank you for giving me wholehearted support to my channel, that is Sindhwanism English. Well, it just started, say, about on the day of Diwali, and got tremendous love and support from all of you, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं चाहूँगा कि आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करिए, एनकरेज करिए, व्यू करिए, शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका जो चैनल को और थोड़ा बढ़ावा मिले. और ऑफ कोर्स यू विल डू इट, यू विल शेयर इट. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.